اسلام آباد اور لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے، لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے کے جھٹکے کمالیا، خانیوال، بھلوال، چنیوٹ، حافظ آباد، ٹوبہ ٹیکسنگ، گجرات، سرگودا اور جھنگ میں محسوس کیے گئے۔ ساہیوال، چیچا وطنی، پھول نگر، میاں والی، تلا گنگ، چکوال، جہانیہ، ظفروال، بھیرا، خوشاب اور میاں چنو میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 5.7 جبکہ گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ڈیرہ غازی خان کے علاقے شادی والا تھا۔ زلزلے سے تاحال کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ یہ کرائسس کا ذمہ دار نہ آپ ہو جناب اسپیکر، نہ میں ہوں، نہ وزیر اعظم، نہ اس ہاؤس میں کوئی بیٹھا ہوا شخص۔ This is a crisis of the judiciary, by the judiciary and for the judiciary۔ اب قائد حزب اختلاف سے پوچھے، کیا میں نے آپ کا بلہ چینا تھا؟ کیا میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے الیکشنز غلط ہے اور اس کے نتیجے میں جناب اسپیکر میں نے ان کا تقریر قائد حزب اختلاف صاحب بولنے تو دے۔ آئین کی بالادستی کے بغیر پارلیمنٹ سمیت کوئی ادارہ نہیں چل سکتا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سرداری کا قومی اسمبلی کے اجلاس سے اظہار خیال بولے، ہم باہر جو سیاست کریں وہ ہمارا مسئلہ ہے، لیکن ایوان کے اندر ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ حکومت کا کام آگ بجھانا ہے، مزید آگ لگانا نہیں۔ اپوزیشن کا بھی یہ کام نہیں کہ ہر وقت گالی گلوچ کریں، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو دیکھنا ہوگا، انہیں نبھانا ہوگا۔ اگر ہم آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے تو ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے کہا کہ کچھ ویڈیو ثبوت سامنے آئے ہیں کہ ارکان کو ایوان کے اندر سے نہیں اٹھایا گیا جو اسپیکر آفس میں موجود ہیں۔ یہ پورا ایوان اسپیکر کے پیچھے کھڑا ہے۔ عطا تارڑ کی تقریر کے دوران پی ٹی آئی ارکان کا شور شرابہ، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بولے، اس پورے واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے، ہم بھاگنے والے نہیں لیکن جبری گمشدگیاں نہ ہوں۔ پکڑ کے باہر اٹھایا جا رہا تھا تو اس وجہ سے جو ممبران یہاں پر رہ گئے وہ رہ گئے، اور پھر رات کو جس طریقے سے کل صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے پوری تفصیل بتائی کہ کچھ لوگ آئے کہ 3 بجے کے بعد بجلیاں بند کی گئیں، پھر ناکنگ ہوئی دروازوں پہ، اور وہ اللہ کا کرم تھا کہ وہ شفقت صاحب اور صاحبزادہ صاحب جو ہیں وہ محفوظ رہے۔ تو ہماری استدعا صرف اتنی ہے کہ کل جو سپیکر صاحب نے آرڈرز کیے ہیں یہ پورا ایوان اس کو تقویت دیتا ہے۔ پرسوں رات یہاں پر نقاب پوش کالی گاڑیوں میں آئے جو ہمارے اراکین کو اٹھا کر لے گئے۔ اس معاملے پر پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں نے بات کی۔ اسپیکر چیمبر میں آئی جی اسلام آباد کو بلایا گیا، ہم نے پروڈکشن آرڈرز کی گزارش کی تو اسپیکر نے زبانی آرڈرز جاری کیے۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کہتے ہیں کسی نے بھاگ کر ایوان میں پناہ نہیں لی، ہماری استدعا ہے کہ اراکین کو اجلاس میں پیش کریں، یہ پارلیمان کی بے توقیری ہوئی ہے، اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا پارلیمنٹ کے اندر سے پی ٹی آئی ارکان کی گرفتاریوں پر ایکشن، سارجنٹ 8 آرمز سمیت 5 سیکیورٹی اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ معطل ہونے والوں میں سیکیورٹی اسسٹنٹ وقاص احمد اور 3 جونیئر اسسٹنٹ سیکیورٹی عبید اللہ، وحید صفدر اور محمد ہارون شامل۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے کر واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری کمیٹی کے سربراہ مقرر ہوں گے۔ پارلیمنٹ پر شب خون مارنے والوں پر آرٹیکل 6 لگنی چاہیے۔ مشیر خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان، بولے جعلی حکومت کے جعلی اور درباری وزراء سے یہی توقع کی جا سکتی تھی۔ جعلی وزراء 9 مئی کے ڈرامے پر مگرمچھ کے آنسو بہانا بند کریں، آج اصلی حکومت ہوتی تو پارلیمنٹ کی اس طرح بے توقیری کبھی نہ ہونے دیتی۔ اسپیکر ایاز صادق پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والوں کے خلاف FIR درج کریں۔
सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस के मुलजिम डॉक्टर डिंशा को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। पासपोर्ट वापस करने की दरखास्त भी मंजूर। जस्टिस शहजाद मलिक ने इस्तफसार किया कि गारंटी है कि डॉक्टर डिंशा वतन वापस आएंगे। मुलजिम के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि डॉक्टर डिंशा मिचल के जमा कराने पर आमादा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में जमानत दी थी, आज तक इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा कि जमानत के फैसले में पासपोर्ट सरेंडर करने का हुक्म दिया गया था। अदालत 3 साल बाद अपने फैसले पर कैसे नजरसानी कर सकती है। वजीर खारजा इसहाक डार के बतौर नायब वजीर आजम तकर्री के खिलाफ दरखास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने फ्रीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि परवेज इलाही का 2013 का नोटिफिकेशन उससे मुख्तलिफ था। इस नोटिफिकेशन में ये लिखा गया था कि नायब वजीर आजम के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि परवेज इलाही की तकर्री का नोटिफिकेशन और हाई कोर्ट के फैसले की नकूल पेश की जाए। दरखास्त में इसहाक डार को फरीक क्यों नहीं बनाया गया। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए 3 नामों की मंजूरी। जजों की तादाद 17 हो जाएगी। उधर कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल भी पेश कर दिया गया। हुकूमती रुकन के बिल में जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 तजवीज दी गई। गुज़िश्ता दिनों अपोजिशन की मुखालफत के बायस बिल मौखिर किया गया। कौमी खजाने पर बोझ कम करने का मिशन। फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर। वजारत खजाना की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक स्पेशल फैमिली पेंशन की मुद्दत 25 साल और कबल इस वक्त रिटायरमेंट पर जुर्माना होगा। वफाकी हुकूमत ने रिटायर्ड मुलाजमीन की वफात के बाद फैमिली पेंशन मुद्दत 10 साल मुकर्रर की है। वफात पाने वाले रिटायर्ड मुलाजिम का फैमिली पेंशन हकदार मासूर बच्चा ताहयात फैमिली पेंशन वसूल करेगा। रज़ाकाराना रिटायरमेंट के लिए 25 साल सर्विस लाजमी होगी। पेंशनर्स में तरमीम पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिशात पर की गई। आर्म्ड फोर्सेस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के लिए फैमिली पेंशन में 50% तक इजाफा। कटौती 3% से लेकर ज्यादा से ज्यादा 20% तक कर दी गई। अमरीकी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस में पहला सदारती मुबाहिसा। सदारती मुबाहिसे में कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी। रियासत पेंसिल्वेनिया में मुबाहिसे का एहतमाम अमरीकी नशरियाती इदारे ABC न्यूज ने किया था। मुबाहिसा 90 मिनट तक जारी रहा। मुबाहिसे में मईशत, इमिग्रेशन, अस्कात हमर, रूस यूक्रेन जंग, इसराइल के गजा पर हमलों समेत अहम दाखिली और खारजी अमूर पर दोनों जमातों के उम्मीदवारों ने अपने अपने मौके पेश किए। अमरीकी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सेल्स टैक्सेस के मुतल्लिक कैमला के बयान में सदाकत नहीं। हैरिस के पास अमरीकी खुशहाली का कोई मंसूबा नहीं। कैमला हैरिस जो बाइडेन की कॉपी करती हैं। कैमला हैरिस मुंतखब होकर अमरीका को तबाह कर देंगी। रोजाना सैकड़ों अफराद गैर कानूनी तरीके से अमरीका में दाखिल हो रहे हैं। जिसको हैरिस अपना बॉस कहती हैं, वो बीच पर बैठा रहता है। हैरिस झूठ बोलती रही। हैरिस की पार्टी शहरियों के पालतू जानवरों को भी नहीं छोड़ती। हैरिस का ताल्लुक सियाफॉर्म खानदान से है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस कहती हैं, मैं अमेरिका की मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। अमेरिकी शहरी ऐसा सदर चाहते हैं जो तकसीम के बजाय मुत्तहिद कर सके। मैंने हमेशा मिडिल क्लास तबके के लिए आवाज उठाई है। डोनाल्ड ट्रंप के पास तरक्की का कोई मंसूबा नहीं। ट्रंप हमारे लिए रिकॉर्ड याफ्ता महंगाई छोड़ कर गए। नोबेल इनाम याफ्ता 6 अफराद ने ट्रंप के दौर को बदहाली का दौर करार दिया। ट्रंप ने औरतों की सेहत का ख्याल नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी जमहूरियत पर सिविल वार से बड़ा हमला किया। ट्रंप अपनी रैलियों में लोगों को बुरे नामों से पुकारते हैं। ट्रंप खुद जराइम में मुलविस हैं। नवंबर में उसे सजा जरूर सुनाई जाएगी। यूं भी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान। है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं भी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान। है कायदे आज़म तेरा
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह की 76वीं बरसी आज अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मोहम्मद अली जिन्ना को 1937 में मौलाना मजहरुद्दीन ने कायद आज़म का लक़ब दिया। उनकी वलवला अंगेज क़यादत में मुसलमानान हिंद ने अलग वतन पाकिस्तान हासिल किया और अंग्रेजों के तसल्लुत से छुटकारा पाया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह 25 दिसंबर 1876 में कराची में पैदा हुए थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान खान तहसूरी की मज़ार कायद पर हाज़िरी, बाबाए कौम के मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। वज़ीर आला सिंध के हमरा काबीना के अरकान ने भी मज़ार पर हाज़िरी दी। वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन और दीगर वज़रा ने भी अरकान वज़ीर आला सिंध के हमरा मौजूद थे। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। फलस्तीन में इस्राएली बर्बरियत जारी है जिसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। आलम इस्लाम को मुत्तहिद होना होगा। मुत्तहिद होकर आलम इस्लाम मुसलमान मुखालिफ कुव्वतों का मुकाबला करें। अपनी ज़ाती रंजिशों को पीछे रखकर मुल्की मसाइल को हल करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें प्यारा मुल्क पाकिस्तान दिया। हम कायद के विजन पर अमल दरामद करेंगे, मुल्क को उस जगह लेकर जाएंगे जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा। गवर्नर सिंध कामरान खान तहसूरी ने कहा कि अल्लाह ताला हमें कायदे आज़म के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम आज शर्मिंदा हैं क्योंकि इस मुल्क में 9 मई जैसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। एक सियासी जमात के लीडरान, उनकी गुफ्तगू सब ने सुनी। समझता हूँ हमें बहुत सी कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी। कुछ लोग दुश्मन बयानियों को खरीद कर बेच रहे हैं। अब कौम को देखना और सोचना है। 24 करोड़ अवाम मौशी बहरान में फंसे हुए हैं। बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी के मौका पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा कायद आज़म ने अपनी अनथक जद्दोजहद की बदौलत करोड़ों मुसलमानों की तकदीर बदल दी। उनकी तालीमात और रहनुमाई पर अमल करके हम पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल मुल्क बना सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले कायद आज़म तारीख में एक मुमताज़ रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं। कायद आज़म ने बरसगीर के मुसलमानों के लिए तहरीक आज़ादी के वलवला क़यादत की जिसकी बदौलत दुनिया की पहली इस्लामी नजरियाती रियासत का क़याम अमल में आया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। खित्ता पोटोहार, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलाई खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। पंजाब के इलाके हाफजाबाद 8 मिलीमीटर, मंडी बहाउद्दीन 5 मिलीमीटर, लाहौर 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बलोचिस्तान के इलाके बारखान में 7 मिलीमीटर और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कलाम में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मंगल को ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत 43 डिग्री सेंटीग्रेड और सिबी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। और सऊदी अरब ने 12 साल बाद शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में अपना सिफारत खाना दोबारा खोल लिया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि दमिश्क में सऊदी सिफारत खाना खुलने की तकरीब में शामी हुकूमती ओहदेदारों, सिफारतकारों और स्कॉलर्स ने शिरकत की। सऊदी सिफारत खाना खुलना शाम और सऊदी अरब के ताल्लुकात की तारीख का अहम दिन है।